جو آخری آپ کا ارشاد تھا، تمہارے لیے قرآن اور حدیث چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اپنا طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، عضوا علیہا بالنواجذ، اس طریقے کو دانتوں سے پکڑنا۔ لوگ تم سے یہ طریقہ چھیننے کی کوشش کریں گے، یہ طریقہ تو پہلے دن سے اس کے لیے سازشیں ہوئی۔ میں نے اپنے حبیب سے بھی کہا تھا، فلا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم۔ میرے حبیب کا طریقہ لوگ لوگوں سے، تم سے، ایمان والوں سے چھیننے کی کوشش کریں گے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو دانتوں سے پکڑ کر کے رکھنا ہے۔ ان امیوں نے اس کو کس طریقے سے، کیسے دانتوں سے پکڑا؟ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تاریخ میں 3 عبداللہ ہیں، موقع نہیں ہے۔ آج میں نے کوئی تقریباً 50 واقعات جمع کیے تھے کہ بچوں نے آپ سے کس طرح محبت کی، بوڑھوں نے آپ سے کس طرح عشق لڑایا اور اس عشق کی تکمیل کر کے دکھائی۔ وہ تو کہتے ہوئے کہہ گئے کہ عشق کماویں ہیں، عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھے وانگ پہاڑا ہوں میں، اور آپ تو کہہ کر کے گئے، وہ کر کے دکھا کر کے چلے گئے۔ یہ قدم قدم بلائیں وہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری، میں اور آپ تو کہتے رہے مگر وہ کر کے دکھا کے چلے گئے۔ مگر وقت اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، وقت تنگ ہے، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں دوسرے دور کے لیے کہ صحابہ نے اس دین کو کس طرح پکڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور لوگوں نے ان کو نرمی کا مشورہ دیا کہ حضرت تھوڑے نرم رہیں، تھوڑے نرم رہیں، اور فلاں کام کے لیے اور فلاں کام کے لیے جھگڑا نہ کریں، اس لیے کہ ابھی حالات بڑے خطرناک ہیں۔ فرمایا اینقص الدین وانا حی، کیا میں زندہ رہوں، ابو بکر زندہ رہے اور لوگ دین کے ٹکڑے کرتے رہیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا اگر مدینہ کے کتے رسالت معاب کے گھر پر حملہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ازواج مطہرات امت کی ماؤں کے پونچے پکڑ کر کھینچیں گے، ابو بکر برداشت کرے گا، مگر اللہ کے دین میں اور حبیب کبریا کی سنت میں کوئی کمی زیادتی کرے گا ابو بکر برداشت نہیں کر سکے گا۔ ہائے ہائے، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا یہ 3 عبداللہ ہیں آپ کے خادم۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی حبیب کبریا کے لیے مسواک رکھتے ہیں، کبھی پانی رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حبیب نے دعائیں دی۔ ایک امام الفقہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام المفسرین اور ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے امام المحدثین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب نے ایک موقع میں فرمایا، حبر هذه الامہ، اس امت کے علم کا سمندر ہے اس کے پاس۔ وہ کوفہ میں تشریف لے گئے، ایک امام کو دیکھا کہ ہر روز فرض نماز پڑھ کر کے دائیں طرف مڑتا ہے، سجی طرف مڑتا ہے۔ آج ہمارا امام بھی مڑتا ہے اور بار بار مڑتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، جو اٹھا کر کے دیکھو۔ عبداللہ ابن مسعود نے جب دیکھا کہ 2 دن امام ادھر سے مڑ رہا ہے، فرمایا جو آدمی یہ سمجھے کہ دائیں طرف مڑنا لازم ہے، اس نے اپنے دین کے اندر شیطان کے لیے بھی کچھ حصہ رکھ لیا۔ لوگ حیران ہوئے، حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے آقا کے پیچھے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے دیکھا کبھی آپ دائیں مڑتے تھے مگر کبھی کبھی بائیں بھی مڑتے تھے، یہ امام ہمیشہ دائیں کیوں مڑتا ہے؟ یہ سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، وہ گئے یہودی جو اپنی طرف سے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ امی پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوئے، چٹان بن کر کے کھڑے ہو گئے۔ عید کا دن ہے، ایک آدمی جلدی آ گیا، ذرا صوفی مزاج ہے، نماز پڑھنے کھڑا ہوا، پیچھے سے حضرت علی آئے اور پکڑ کر کے جوں زور سے جھٹکا دیا، وہ جا کر کے گرا، وہ اٹھا، اس نے کہا میں نے کس کی مخالفت کی؟ آپ نے میری نماز بھی توڑی اور نماز میں مجھے گرایا، آپ نے تو گستاخی کی حد کر دی، یہ کیا کام کیا ہے؟ فرمایا تو نے گستاخی کی حد کی ہے، تو نے کس کی مخالفت کی؟ تو نے اس کی مخالفت کی جس کی رضا رب چاہتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں نے کتنی عید کی نمازیں پڑھی، میرے حبیب نے، میرے آقا نے یہاں پر کبھی بھی عید سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھے، تو کون ہوتا ہے نفل پڑھنے والا؟ نہیں ہے موقع اس کے لیے کہ میں مزید اس کی تفصیل میں بھی جاؤں۔ ایک اور حدیث سنائی تھی، کیا تھا؟ لا یکون، تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مجھ سے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ محبت نہ کر کے دکھائے۔
अर्ज किया क्या है मोहब्बत का मतलब, फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके जहन की सोच उस दीन के ताबे न हो जाए जिसको मैं लेकर के आया हूं। एक और इरशाद अर्ज किया था खुतबे में, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती अलल हक़। ये सहाबा का जमाना था जिन उम्मियों को कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये पक्के मोमिन हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, ये बिल्कुल सच्चे हैं। उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये बिल्कुल कामयाब होने वाले हैं। इनकी सदाकत में, इनके ईमान में, इनकी कामयाबी में अगर कोई शक करेगा उसके ईमान में शक है। तो क्या ये सिलसिला इस तरह दीन के साथ डट जाने का और दीन पर अपने आप को कुर्बान करने का ये इन्हीं पर खत्म हो जाएगा? फरमाया नहीं नहीं, क़यामत तक खड़े करूंगा उनको। मैं रब्बे कायनात कह रहा हूं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैंने कुरान को नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। रब्बा कैसे हिफाजत करेगा? फरमाया मेरे सारे काम असबाब के तहत होते हैं। इसके अल्फाज की हिफाजत के लिए कारियों को पैदा करूंगा, इसको याद रखने के लिए हाफिज़ों को पैदा करूंगा, इसके मानी के लिए मुफस्सिरीन को पैदा करूंगा, इसकी तशरीह के लिए मुहद्दिसीन को पैदा करूंगा। और क़यामत तक एक तबका होगा, यहां तक कि जब दज्जाल अकबर आएगा उस वक्त भी वो तबका होगा जो सही तौर पर सुन्नतों पर कायम होगा और उस हदीस का तर्जमान होगा कि इसको अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़, इस दीन को दांतों से पकड़ कर रखो, कोई तुमसे छीन न ले। ये 13 सदी गुजर चुकी हैं, अब तरीका दौर है पूरी दुनिया के ऊपर गोरू का परचम लहरा रहा है और वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता है। इस वक्त में परवरदिगार ने एक ताइफा मंसूरा को खड़ा किया, एक गिरोह को खड़ा किया। अल्फाज भी नहीं, वक्त भी नहीं, मैं उधार लेता हूं सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से। उसने कहा जब मैं इस ताइफा पर गौर करता हूं मुझे ऐसा लगता है कि सहाबा की रूहों का एक काफिला जा रहा था, उन रूहों में से कुछ को रोक कर रख लिया गया और कहा उनको 13 सदियों के बाद पैदा करूंगा। उस वक्त इनकी जरूरत होगी, उस वक्त ये पहाड़ बन करके खड़े होंगे, कोई गोरू के मुकाबले में खड़ा होगा और उसको वहां गाड़ देगा जहां से वो उठा होगा। वो फकीर दुर्वेश खड़ा होगा और कुरान की आयत का तफसीर करेगा, वो मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जब गोरे कहेंगे कि जब जिसके पास खेत होगा उसको रोटी मिलेगी, जिसके पास भैंस होगी उसको दूध मिलेगा, जिसके पास बाग होगा उसको फल मिलेंगे, उस वक्त में वो दुर्वेश ऐलान करेगा वो मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए मुसीबतों से निकलने के रास्ते बनाएगा। वो यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको वो देगा जिसका उसका गुमान भी नहीं होगा। वो दुर्वेश उठा, उसने सबसे पहले दारुल का बुनियाद रखी और उसके 8 उसूल बनाए। पहला उसूल ये बनाया ये इधर अल्लाह के भरोसे पर चलेगा ताकि इंसानों को बताया जाए कि अंबिया किराम यही सबक पढ़ा कर गए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं जिसको वो दे उससे कोई ले नहीं सकता, जिसको वो ना दे उसको कोई दे नहीं सकता। ये ताइफा उठा, इसने सुन्नतों को सीने से लगाया और दांतों से पकड़ा, वल्लाह वल्लाह दांतों से पकड़ा। वो मुजद्दिद अल-फिसानी जिसने एक इनकलाब बपा किया 1000 साल के बाद, क्या अहमियत थी उसके नजदीक सुन्नतों को पकड़ने की। एक मुरीद से कहा कि एक आदमी सारी रात खड़ा रहता है और नफलें पढ़ता है, फरमाया रब्बे काबा की कसम उसका मकाम नहीं पा सकेगा जो दोपहर को थोड़ी देर सुन्नत समझ करके सो जाता है और कैलूला करता है। दोनों हाथ बुलंद करके नाराए तकबीर। अकाबिरीन उम्मत कासिमुल उलूमी वल खैरात अल्लामा कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना महमूद अल हसन गंगोही, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी, उलमाए हक उलमाए देवबंद, बुलंद आवाज से उलमाए हक उलमाए देवबंद, तंजीम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, वसीला कौम व मिल्लत हजरत मौलाना गुलाम कादिर साहब, नाराए तकबीर, शान-ए रिसालत। ये तबका खड़ा हुआ, ये ताइफा मंसूरा खड़ा किया गया। मैं नहीं तफसील में जा सकता और वक्त भी मेरा पूरा हुआ चाहता है, लेकिन मेरे सामने असलाफ के किरदार का एक ठाठे मारता समुंदर है। हाय हाय,
क्या इश्क अता किया था। हजरत गंगोही के पास कोई आया, कपड़ा लेकर के कहा कि ये मदीना से लाया हूं। दूसरे किसी ने कहा हजरत मदीना में कोई कपड़े नहीं बनते हैं, ये तो बाहर की फैक्ट्रियों में बन करके जाते हैं और मदीना के नाम पर ला करके लोग भेजते हैं हाजी लोग और धोखा देते हैं आपको। फरमाया रब्बे काबा की कसम, जिसको मदीना की हवा लग गई है उसके मुकाबले में दुनिया का कोई कपड़ा नहीं हो सकता है। हजरत खजूर बांटने लगे और एक आदमी को थोड़ी सी आई, एक ने कहा हजरत ये हकीर सी है, इसके ऊपर क्या ये थोड़ी सी। फरमाया दफा हो जा, मुझसे दूर हट, तू मदीने की खजूर के टुकड़े को हकीर कहता है, तुझे शर्म नहीं आती। और खजूरों के टुकड़े रख लिए, गुठलियां रख ली और उसको कूट लिया। फरमाया सुबह को थोड़ी देर फक्की मार लेता हूँ, मज़ाक़े मदीना की याद आ जाती है। आखिरी वक्त में बूढ़े हो गए, आंखों में सुरमा फेर रहे, सलाई फेरते हैं। लोगों ने कहा हजरत सुरमा तो बिनाई के लिए होता है, बिनाई तो जाती रही, अब सुरमा लगाने से क्या फायदा। फरमाया सुरमा बिनाई के लिए नहीं था, ये मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई के लिए था। वो तब भी थी जब बिनाई थी, अब भी है, मैंने तब भी रब्बे काबा की कसम कभी सुरमा बिनाई के लिए नहीं लगाया, मैंने सुन्नत के लिए लगाया, आज भी इसीलिए लगाता हूँ। हाय वक्त साथ नहीं देता, घड़ी की सुइयां तेजी से दौड़ती हैं। बस मैं आखिरी बात कहता हूँ, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। ओ मेरी जमात के साथियों, मैं आज सुबह से ये बार बार कह रहा हूँ और तीसरी मर्तबा आपसे कह रहा हूँ, अपने अकाबिर की मौजूदगी में कहता हूँ और इस सहारे मजमे से कह रहा हूँ। कुरान ने कहा, यहूदी कहते थे कि हमारे बड़े बहुत बड़े थे, हम पीरों और पैगंबरों की औलाद हैं। कुरान ने कहा झूठे हो, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। वो एक जमात थी अंबिया की, वो एक जमात थी बुजुर्गों की, वो एक जमात थी वलियों की, वो गुजर चुकी है। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनको वो मिलेगा जो उन्होंने कमाया, तुमको वो मिलेगा जो तुमने कमाया। मेरे साथियों, आज कमजोरी यही है, हम कहते कासिम नौनौतवी ऐसे आशिक रसूल थे कि मदीना में जूती नहीं लगाई और पांव जख्मी से तरबतर हो गए, जख्मों से तरबतर हो गए। लेकिन फरमाया नहीं, मेरा दिल नहीं मानता है कि मेरे हबीब के जहां मुकद्दस पांव लगे हूं वहां कासिम का जूता लगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज हमारा अमल, हमें इस अमल का क्या फायदा, हमारे काम तो हमारा अमल आएगा। मेरे साथियों, आज अहद करके उठो, अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज, हम सुन्नतों को अब सीने से लगाएंगे, सुन्नतों से चिमटेंगे। हमसे सुन्नतें छीनी जा रही हैं, सूखे और खोखले नारे रह गए हैं, बस खाली कि ये पिदरम्मा सुल्तानपुर हमारे बड़े इतने बड़े थे, ऐसे थे वैसे थे। लोग हमको देखना चाहते हैं, कौन अशरफ अली का तर्जमान है, कौन रशीद अहमद गंगोही का तर्जमान है, कौन खलील अहमद सहारनपुरी। और मैं आपसे कहता हूं, यकीनी तौर पर आप उनके तर्जमान, यकीनी तौर पर मैं और आप उनकी औलाद, यकीनी तौर पर रूहानी औलाद हैं उनकी, उनके जानशीन हैं। उठो और साबित करो कि हम सुन्नतों से समझौता नहीं करेंगे। यही इश्क मुस्तफा है। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी हरम तशरीफ ले गए, हज के लिए तशरीफ ले गए, बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है। आज है बहुत सारे लोग सुन्नतों की रट लगाए हुए। मुझे हरम में भी एक मिला कि आपने ये काम नहीं किया, मैंने कहा आपने बड़े काम कर लिए। कहने लगे कि जनाब ये भी सुन्नत है। मैंने कहा तुम तो सारी सुन्नतें डकारते जा रहे हो और इंतजामिया को उसके लिए आलात फराहम कर रहे हो और उनकी हिमायत कर रहे हो इन मसाइल में। सुन्नत थी 8वीं जिलहिज्जा को सूरज निकलने, सुबह के बाद मक्का से निकलना, हाजियों को रात को निकाला जा रहा है और तुम तमाशा देखते हो, तुम्हें मौलवी कहते लोग। और फिर सुन्नत है कि सूरज की शुआएं देख कल के मीना से आदमी अरफात निकले, लोगों को रात को निकाला जाता है और तुम तमाशा देखते हो। मेरे आका की सुन्नतें ज़िबा की जा रही हैं, तुम तमाशा देख रहे हो। सुन्नत है कि मुज़दलिफा में लोग आए और रात को यहाँ ठहरें, और वाजिब है चारों इमामों के नजदीक और इनके नजदीक भी वाजिब था कि मुज़दलिफा में गलस में फजर की नमाज पढ़ें और उसके बाद सूरज निकलने तक यहाँ दुआएं करें और उसके बाद यहाँ से कूच करें। लोगों को रात को निकाला जा रहा है और तुम इसका तमाशा देख रहे हो। मैं उसका रूहानी बेटा हूँ जो मीना में थे। हजरत मौलाना खलील सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो ऊँटों का जमाना था, अभी गाड़ी नहीं आई थी। इस वक्त के
جس کو معلم کہتے उस वक्त में मुतव्विफ कहते थे, वो आया और अभी सहरी को हजरत दुआ कर रहे थे और मशगूल थे अपने मालिक के साथ. उसने कहा हजरत जल्दी चलिए, फिर अरफात में जगह नहीं मिलेगी, ऊंट वाले तैयार हो गए हैं. फरमाया यहाँ से सूरज की शुआएं देखने के बाद सुन्नत है निकलना. तू कौन आया बीच में इबादत में खलल डालने वाला? उसने कहा ऊंट वाले जा चुके होंगे, फिर आप क्या करोगे? फरमाया जो मेरा रब चाहेगा वो करूंगा, मैं सुन्नत को नहीं छोड़ सकता हूं. उसने कहा अजीब मौलवी हैं आपका फर्ज छूट जाएगा अरफात में ठहरना, तो क्या आप फर्ज के सुन्नत की वजह से फर्ज को कुर्बान करूंगा? कहा तू कोई मेरा पीर और मुर्शद और मेरा उस्ताद नहीं है कि तू मुझे कुरान और हदीस समझाए. तू मेरा मुलाजिम है, मैंने तुझे इसके लिए पैसे दिए हैं. कुरान और हदीस मैं तुझे समझाऊंगा. हम फर्जों की वजह से न सुन्नतों को ज़िबाह करेंगे, न सुन्नतों की वजह से फर्जों को छोड़ेंगे. हम हर एक फर्ज को सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे. अगर सुन्नत के मुताबिक अदा होगा वो फर्ज अल्लाह के यहाँ कबूल होगा, और जो सुन्नत के खिलाफ होगा खिलाफे पैगंबर कसेरा गुज़ीर के हरगिज़ बमंजिल न ख्वाहद रसीद. मेरे साथियों, मैंने दर्द दिल सामने रखा और आपके लिए नहीं अपने लिए रखा. लोग हमको देखना चाहते हैं ये कितने सुन्नतों पर कायम हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये उम्मत बांझ नहीं है. आज भी उम्मत की कोख से अल्हम्दुलिल्लाह वो जवान पैदा होते हैं. एक जवान को इंटरव्यू देना था बड़ी पोस्ट के लिए, मेरे सामने की बात है. दाढ़ी लंबी थी, उसके बाप ने पहले उसकी ठोड़ी पकड़ी कि आज दाढ़ी कटा दे हैं, और अजीब अल्फाज से हमारी ज़बान में कहता है अपनू कहा है आप पे बद तो जाए वो. उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता. उसके बाद उसके पैर पकड़ लिए इस सुन्नत को ज़िबाह करने के लिए. उसने कहा मैं ऐसी नौकरी पर थूकता हूँ जो मुझे सुन्नतें ज़िबाह करके मिलती है. और बाप ने उसको चिढ़ाया था, उसकी वजह से इतना बड़ा पगड़ भी बांध कर गया, और वो भी काला बांध करके गया, और अल्लाह ने करम किया वो पगड़ी ही उसकी नौकरी का जरिया बन गई. उससे उसके मसले के बारे में बात होने तक बात ही नहीं आई. उसको यही पूछा ये क्या चक्कर है. अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन बच्चियों को जानता हूँ जाती तौर पर जिनको पर्दा करने के ऊपर उनके वालिदैन ने मारा, उनके बाप ने मारा और उसके भाई ने मारा. और छोड़ो माँ और बाप को, सबसे मेहरबान माँ ने उसको बोरी में बंद करके मारा. उसने कहा मैं सुमैया की वारिस हूँ, मेरी माँ मैं तेरी वजह से हबीब किबरिया की सुन्नत नहीं छोड़ सकती हूँ. मैं साद इब्ने वक्कास की वारिस हूँ जिसने अपनी माँ को कहा था, माँ ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी, सर नहीं धोऊंगी और धूप से अंदर नहीं जाऊंगी जब तक तू मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ेगा. उसने कहा तू एक मरतबा क्यों मरता है, 1000 मरतबा मर और फिर जिंदा हो. मैं तेरे मरने से डरता नहीं हूँ, जिसका पल्ला पकड़ चुका हूँ उसको छोड़ नहीं सकता. मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ, इसलिए कि जो भी खूबसूरती के सांचे और ढांचे थे वो हबीब किबरिया पर खत्म हो गए. खुदा की कसम ओ रुख मुस्तफा वो आईना है, अब ऐसा आईना न हमारे ख्याल में आ सकता. और बुखारी के अल्फाज में कहिए कि न दुकान आईना साज में, परवरदिगार ने वो सांचे तोड़ दिए जिनसे मुस्तफा को बनाया गया था. अब वो सांचे बाकी नहीं, अब वो खूबसूरत लगेगा जिसका चेहरा मोहम्मद मुस्तफा की तरह होगा. वो अच्छा लगेगा जिसकी जिंदगी उनकी तरह होगी. और जो उनसे हट कर कहेगा कि ये मेरा कल्चर है, ये मेरी तहजीब है, मैं किसी और तरीके पर चल रहा हूँ, वो इस कौल की मुखालफत कर रहा है जो आखिरी हज पर आपने फरमाया था तहत कदमी यहादा. मैंने तमाम तहजीबों को, तमद्दुनों को और दौरे जहालत के तमाम रस्म और रिवाज को अपने पांव के नीचे मसल दिया है. फिर अर्ज करता हूँ कहें हम के फलां बिदत कर रहा है. मुफ्ती साहब ने कहा इल्मी तहकीक पेश करे, मगर जरूरत इसकी है कि हम सुन्नत पेश करें, इसलिए कि हमसे कब्र में हमारा सवाल होगा, हमसे पूछा जाएगा न कर इधर उधर की बातें, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजन से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है.